گوادر کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ گوادر پورٹ سے تعلق ہو، چاہے وہ گوادر میں بسنے والے ہمارے عظیم پاکستانی بھائیوں کا مسئلہ ہو، تو جہاں پر گوادر کا یہ عظیم منصوبہ جس نے نہ صرف گوادر شہر، آس پاس کے علاقے، گوادر بلوچستان کے عوام کے لیے ایک ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے گا۔ گوادر کے لوگوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، وزیراعظم شہباز شریف کا گوادر میں تقریب سے خطاب، کہا 1.5 ماہ کے دوران گوادر کا دوسرا دورہ ہے، وفاقی حکومت بلوچستان کے مسائل حل کرنے کی خواہاں ہے، جب تک گوادر کے مسائل حل نہیں ہوتے ترقی بے معنی ہوگی۔ $700 ملین کی لاگت سے گوادر کی تعلیمی اداروں میں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ DHQs گوادر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 38 کروڑ کے لگ بھگ ہم نے پیسے رکھے ہیں۔ 40 کروڑ کے لاگت سے گوادر کو فراہمی آب کے لیے واٹر سپلائی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ گوادر کی ترقی بلوچستان اور پاکستان کی ترقی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس کہتے ہیں گوادر کے مسائل کے حل اور منصوبوں کی تکمیل ہمارا عزم ہے۔ صوبائی بجٹ میں گوادر کے لیے 1652 ملین رکھے گئے۔ گوادر کو پانی کی فراہمی کے لیے بھی بجٹ میں حصہ رکھا گیا۔ سرحدی علاقوں میں کمرشل مارکیٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ایک دن کمی کے بعد انٹر بینک میں امریکی ڈالر پھر مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں پھر 1 روپیہ 27 پیسے اضافہ، قیمت 208 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ ادھر سٹاک مارکیٹ میں بھی 1987 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 40,729 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ عوام کو ایک اور جھٹکا، حکومت کا بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اگلے 3 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 7 روپے 91 پیسے تک اضافہ ہو جائے گا۔ 1 اگست سے بجلی کی یونٹ کی قیمت میں مزید 3 روپے 50 پیسے اضافے کا امکان۔ ستمبر میں بجلی ٹیرف میں مزید 91 پیسے فی یونٹ بڑھ جائے گا۔ نیپرا کے مطابق 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں۔ حکومت کا بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مہنگائی کا طوفان ہے، جان لگائیں گے اور اسے کنٹرول کریں گے۔ پاکستان اب ڈیفالٹ نہیں بہتری کی جانب جائے گا، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، زرعی آلات ٹریکٹر وغیرہ پر سبسڈی دے کر کسانوں کو بھی مدد کی۔ بطور سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ میں جو صوبے میں آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ آئے، سیاسی حوالے سے شاید کبھی پنجاب کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں اور بلکہ اقوام عالم میں 3 مہینے میں جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئینی حوالے سے جو دشواریاں پیش آئیں، شاید وہ اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا خطاب، کہا آئین کے رکھوالوں نے قانون کو پیروں تلے روندا، صوبے میں آئینی بحران کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، بجٹ کا تمام عمل انارکی نظر ہو گیا، لانگ مارچ اور تحریک سے ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ عمران خان کی 15 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کامران بشارت مفتی کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عمران خان اپنے وکیل بابر اوان کے ہمراہ عدالت میں پیش، پولیس کو گرفتاری سے روک دیا، مقدمات کا ریکارڈ طلب، سماعت 6 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
लाहौर डिफेंस ए के इलाका में चोरी की वारदात, चोर शहरी की कीमती गाड़ी और मोबाइल ले उड़े। 24 घंटे की ताखीर के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। इलाका में सेफ सिटी के लगाए दर्जनों कैमरे खराब निकले। फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल। कोरोना की छठी लहर में शिद्दत। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 309 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 2.22% पर आ गई। NIH के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। सियासी पंडितों की नजरें नवाब शाह पर मरकूज। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। नवाब शाह, सखर, लाड़काना, सांगढ़, नौशहरो फिरोज, शिकारपुर और जैकबाबाद समेत 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 26 जून को होंगे। और प्री मानसून का स्पेल खत्म। मुल्क भर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के सिंध में नवाबशाह, मिट्टी और दादू में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम है। गवादर के लोगों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा 1.5 माह के दौरान गवादर का दूसरा दौरा है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की ख्वाह है। जब तक गवादर की मसाइल हल नहीं होते तरक्की बेमानी होगी। फिलफौर जितनी जल्दी इसको हम मुकम्मल कर सकें ताकि हमारे कौम की बेटे और बेटियां वहाँ पर तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता हूँ और आप कह सकें कि गवादर के बेटे और बेटियां भी वो कराची, लाहौर, पेशावर के हम पल्ला हैं और वो भी उनको भी उसी तरह आला तरीन जो तालीम वो दी जा रही है। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आपके जो दूसरे जो मामलात हैं वो इंशाअल्लाह हम हल करते रहेंगे। जो ये बिजली जो है 100 मेगावाट जब आ जाएगी तो एक बेस लोड बन जाएगा। जब बेस लोड बन जाएगा तो फिर जो शमसी तवानाई या फिर जो हवा से जो विंड पावर जिसे कहते हैं वो फिर इंशाअल्लाह वो भी क़याम में अमल में आएगी। और हमने गवादर के घरों के लिए जो सोलर पैनल का जो मंसूबा बनाया है जिसके ऊपर तेज़ी से इंशाअल्लाह हम काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस मंसूबे का ऐलान किया जाएगा। मैं आखिर में आपको एक बात बड़े अदब से लेकिन बड़ी दर्दमंदी से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपके जो मसाइल हैं उनको हल करना मेरी और मेरे ज़ोमा की सबकी ज़िम्मेदारी है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस साल जो PSDP जो है यानी जो वफाकी तरक्यात, उर्दू में उसको कहते हैं वफाकी तरक्याती, जो इस साल का जो प्लान है उसमें अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा किस सूबे के लिए रकम रखी गई है तो आप बता सकते हैं? बताएं, आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बता सकते हैं? शाहबाज। बलूचिस्तान के लिए 100 अरब रखा गया है इस साल। 100 अरब रखा गया है बलूचिस्तान के लिए।
61 अरब रखे गए हैं हमारे मेहरान की वादियों के लिए, सिंध के लिए, और 58 अरब रखे गए हैं पंजाब के लिए, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। लेकिन ये है वो एक खलूस और दर्द दिल के साथ बलूचिस्तान और जो हमारे जो वो इलाके जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनके लिए यानी 100 अरब रुपया हमने रखा है बलूचिस्तान के लिए। तो इसी से अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत जो कि एक कोलिशन हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों की जो सियासी पार्टियां हैं उनकी नुमाइंदगी है और उन्होंने अपनी मेहरबानी से मुझे चुना है। मैं समझता हूं कि ये हम अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं। गवादर की तरक्की बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुदूस कहते हैं गवादर के मसाइल के हल और मंसूबों की तकमील हमारा अज़्म है। सूबाई बजट में गवादर के लिए 1652 मिलियन रखे गए। गवादर को पानी की फराहमी के लिए भी बजट में हिस्सा रखा गया। सरहदी इलाकों में कमर्शियल मार्केट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। एक दिन कमी के बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 67 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में कीमतें खरीद 207 और कीमतें फरोख्त 208 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान है और 100 इंडेक्स में 2055 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 40,661 की सतह पर आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए अहम फैसले किए। हमारी कोशिश है अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। गुज़िश्ता हुकूमतों की नातजर्बाकारी और करप्शन की वजह से मईशत दिवालिया होने जा रही थी, लेकिन मुल्क अब इन मुश्किलात से निकल आएगा। हमने बजट से मुतालिक अहम फैसले किए और ये तारीख का पहला बजट है जो गरीब को मुश्किलात से निकालने के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास दो रास्ते थे, एक इलेक्शन इस्लाहात करके इंतखाबात की जानिब जाएं और दूसरा रास्ता सख्त फैसले करें और डूबती मईशत को संभालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए अहम फैसले किए। हमारी कोशिश है अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। गुज़िश्ता हुकूमत की नातजर्बाकारी और करप्शन की वजह से मईशत दिवालिया होने जा रही थी, लेकिन मुल्क अब इन मुश्किलात से निकल आएगा। हमने बजट से मुतालिक अहम फैसले किए और ये तारीख का पहला बजट है जो गरीब को मुश्किलात से निकालने के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास दो रास्ते थे, एक इलेक्शन इस्लाहात करके इंतखाबात की जानिब जाएं और दूसरा रास्ता सख्त फैसले करें और डूबती मईशत को संभालें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि गरीबों से नहीं बल्कि अमीरों से टैक्स लेंगे और छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूल किया जाएगा। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और किसानों को पैसा सरमायाकारी समझ कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि हमने मुश्किल फ़ैसले लिए हैं और सियासी साख पर मुल्क की मफाद को तरजीह दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटों की कंपनियों पर भी टैक्स लगाया गया है। गुज़िश्ता 10 से 20 साल में ऐसा किसान दोस्त बजट नहीं आया। रवा माली साल का बजट खसारे के हवाले से याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने दावा किया है कि मिफ्ता इस्माइल को फारिग करके इसहाक डार को वापस लाया जा रहा है। शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा कि महंगाई और मुल्की मईशत को डुबोने के तमाम बुरे फैसले करवाने के बाद अब मिफ्ता इस्माइल को फारिग किया जा रहा है और इनकी जगह मशहूर ज़माना इसहाक डार तशरीफ ला रहे हैं, जिन्होंने पिछली बारी 33 अरब डॉलर ज़ाया किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने दावा किया है मिफ्ता इस्माइल को फारिग करके इसहाक डार को वापस लाया जा रहा है।
شہباز گل نے ٹویٹ میں لکھا کہ مہنگائی اور ملک کی معیشت کو ڈوبنے کے تمام برے فیصلے کروانے کے بعد اب مفتاح اسماعیل کو فارغ کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ مشہور زمانہ اسحاق ڈار تشریف لا رہے ہیں، جنہوں نے پچھلی باری 33 ارب ڈالر ضائع کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ انتخابات کے لیے آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا۔ صوبے میں آئینی بحران کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران صوبے میں اتار چڑھاؤ آئے، آئین کے رکھوالوں نے قانون کو پیروں تلے روندا، بجٹ کا تمام عمل انا کی نظر ہو گیا۔ لانگ مارچ اور تحریک سے ملکی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ میں جو صوبے میں آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ آئے، سیاسی حوالے سے شاید کبھی پنجاب کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں اور بلکہ اقوام عالم میں 3 مہینے میں جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئینی حوالے سے جو دشواریاں پیش آئیں، شاید وہ اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ شاید ہی کوئی تاریخ کا واقعہ ہوگا جہاں پر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اور اس دن جہاں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئین اور قانون پامال ہوتے ہوتے رہ گیا، آپ کو بھی اللہ نے نئی زندگی دی، وہاں پر بیٹھے قانون کے رکھوالوں نے جو اپنے آپ کو کسٹوڈین کے حیثیت سے حلف اٹھا کر پابند کر بیٹھے تھے آئین اور قانون کے، انہوں نے اس دن آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے روندا۔ سابق وزیراعظم عمران خان کو ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق 15 مقدمات میں عمران خان کی 6 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے سابق وزیراعظم کو 5,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ سیشن جج کامران بشارت مفتی اور عبدالغفور کاکڑ نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق مقدمات کی الگ الگ سماعت کی۔ سابق وزیراعظم عمران خان اپنے وکیل بابر اوان اور پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عمران خان کے خلاف 11 تھانوں میں ٹوٹل 15 مقدمات درج تھے۔ عمران خان کی ٹوٹل 15 مقدمات میں عبوری ضمانت کی گئی۔ 10 مقدمات ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ویسٹ میں، 5 مقدمات ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ایسٹ میں درج تھے۔ عوام کو ایک اور جھٹکا، حکومت کی جانب سے بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اگلے 3 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 7 روپے 91 پیسے تک اضافہ ہو جائے گا۔ 1 جولائی سے بجلی کا یونٹ 3 روپے 50 پیسے مہنگا ہو جائے گا۔ 1 اگست سے بجلی کے یونٹ کی قیمت میں مزید 3 روپے 50 پیسے اضافہ ہوگا۔ ستمبر سے بجلی ٹیرف میں مزید 91 پیسے فی یونٹ بڑھ جائے گا۔ بنیادی ٹیرف 24 روپے 82 پیسے فی یونٹ ہو جائے گا۔ نیپرا ذرائع کے مطابق 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی عروج پر۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا آبائی حلقہ ہونے کی وجہ سے سیاسی پنڈتوں نے نظریں نواب شاہ پر مرکوز کر لیں۔ انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے۔ نواب شاہ، سکھر، لاڑکانہ، سانگڑ، نوشہر و فیروز، شکارپور اور جیکب آباد سمیت 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن 26 جون کو ہوں گے۔
मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 5217 मेगावाट पर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,783 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। कोरोना की छठी लहर की शिद्दत बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 2.22% पर आ गई। मुल्क में मजीद 309 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक हुई है। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,941 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 309 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.22% हो गई है। 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई, ताहम कोरोना से मुतासर 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खराब और खटारा गाड़ियां मिलने पर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए खराब और खटारा गाड़ियां फराहम की हैं। हुकूमत कानून के मुताबिक सिक्योरिटी और मुलाजमीन भी फराहम नहीं कर रही। दरख्वास्त में इस्तदा की है कि लाहौर हाई कोर्ट सिक्योरिटी और मुलाजमीन फराहम करने का हुक्म दे। अदालत पंजाब हुकूमत को ठीक गाड़ियां देने के लिए अहकामात दे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हालिया प्री मानसून स्पेल खत्म हो गया। आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिंध में नवाबशाह, मिट्टी और दादू में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई है। बलूचिस्तान में सिब्बी, नौकंडी और तुरबत में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मौसम की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हालिया प्री मानसून स्पेल खत्म हो गया। आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिंध में नवाबशाह, मिट्टी और दादू में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई है। बलूचिस्तान में सिब्बी, नौकंडी और तुरबत में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पोस्ट मास्टर जनरल ख्वाजा इमरान रज़ा की मुलाकात में पोस्ट ऑफिस में डिजिटलाइजेशन और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि जदीद दौर में पोस्ट ऑफिस को भी टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक ई कॉमर्स की तरफ जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान पोस्ट अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम कर रहा है। पाकिस्तान पोस्ट का एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ कागजात और नंबर प्लेट्स की तरसील का मुआहदा एक अच्छा इक़दाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पोस्ट मास्टर जनरल ख्वाजा इमरान रज़ा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पोस्ट ऑफिस में डिजिटलाइजेशन और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि जदीद दौर में पोस्ट ऑफिस को भी टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक ई कॉमर्स की तरफ जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान पोस्ट अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम कर रहा है। पाकिस्तान पोस्ट का एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ कागजात और नंबर प्लेट्स की तरसील का मुआहदा एक अच्छा इक़दाम है। आरिफवाला में यूटिलिटी स्टोर्स अमले की मनमानियां खरीदारी के लिए आए शहरियों को धूप में खड़ा कर दिया। शहरी थक हार कर घरों को वापस जाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जान लेते हैं रजा जैदी से, जो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त मौजूद हैं आरिफवाला तहसील रोड पर यूटिलिटी स्टोर के करीब। यहाँ पर आवाम के साथ जो मसाइल हैं, हम आवाम से ही पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी भाई। सारा दिन लैना लगिया रहंदियां ने। अपने तलक वाले ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ तलक वाले उन्होंने क्यों मिलता वा, दूसरे गरीब सारा दिन धक्के खा के चले जाते। पिछे औरतों का रश हाल देख लो, औरतां बेहोश हो जांदियां ने, बंदे बुरे हाल है। 15-20 मिनटां पर एक बंदा अंदर वाड़दे ने तो 2-3 घंटे बाद दरवाजा लगा देंदे ने। गरीब आदमी कितने जावे? 600 रुपये किलो घ्यो कितों खावे? जी, जैसा कि आपने सुना कि ये शख्स आज भी सुबह से आके खड़ा है और इसको घी नहीं मिल रहा। कल इसके घर वाले यानी इसकी वाइफ
وہ آگے کھڑی رہی ہے, 4 گھنٹے کھڑی ہو گئے, وہ بھی واپس چلی گئی. اور حالات اس طرح ہے کہ جو ان کے جاننے والے ہیں ان کو اپنے طور پہ گھی دیا جا رہا ہے, اور اتنی شرائط ہیں کہ عام آدمی کو اس کا باہر پتہ بھی نہیں چلتا. جب آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا شناختی کارڈ بھی چاہیے, اس کے ساتھ موبائل بھی ہونا چاہیے, اس کی سم پہ میسیج آئے گا, پھر اس کو جا کے کچھ چیزیں ملیں. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حیدرآباد میں مہنگائی کا جن بوتل میں نہ جا سکا, آٹے اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان ہیں. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد وحید راجپوت سے. وحید, اپڈیٹ کیجیے گا. قابو ہو چکا ہے. پیٹرول کی قیمتوں کے بعد اب آٹے کی قیمتوں میں بھی 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں آٹا 85 روپے میں فروخت ہو رہا تھا, جس کی 10 روپے اضافے کے بعد اب 95 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے شہریوں سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. حکام سے ہمارے یہی التجا ہے کہ گندم کی پرائسز کو بھی دیکھے اور جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو کم کرے, تاکہ غریب کو جو 2 وقت کی روٹی میسر ہو سکے. پچھلے جی, عوام کی آپ نے بات سنی. عوام کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر چیز سستی کر دیں گے, لیکن ایک بھی وعدہ سچ نہیں ہوا. ہماری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل ہے کہ چیزوں کو سستا کیا جائے تاکہ ہم 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کھلا سکیں. کیمرہ مین علی وارث کے ساتھ محمد وحید, کوہ نور نیوز. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آج ہی پنجاب راؤ سردار علی خان نے عید قربان کی آمد کے پیش نظر مویشی منڈیوں کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. صوبے کے تمام اضلاع میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کی جانے والی مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے عید قربان کی آمد کے پیش نظر مویشی منڈیوں کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. صوبے کے تمام اضلاع میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کی جانے والی مویشی منڈیوں کے سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے عید قربان کی آمد کے پیش نظر مویشی منڈیوں کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. صوبے کے تمام اضلاع میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کی جانے والی مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں. رینالہ خرد میں جرائم کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ ہونے لگا. تھانہ سٹی پولیس نے شہریوں کو ڈاکو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. شہری لاکھوں روپے کی نقدی, موبائل فونز اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے. شہریوں نے ڈی پی او اوکاڑا اور آر پی او ساہیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ تھانہ سٹی کے ایریا میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کا نوٹس لیا جائے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ناقص گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن. لاہور بکر منڈی کے علاقے میں میٹ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی. 2500 کلو ناقص گوشت تلف کر دیا گیا ہے. آپ کو اہم کارروائی سے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. ناقص گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن. لاہور بکر منڈی کے علاقے میں میٹ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی. 2500 کلو ناقص گوشت تلف کر دیا گیا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے اہم کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. ناقص گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن. لاہور بکر منڈی کے علاقے میں میٹ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی. 2500 کلو ناقص گوشت تلف کر دیا گیا ہے. آپ کو اس اہم کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے اہم کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. ناقص گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن ہے. لاہور بکر منڈی کے علاقے میں میٹ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی. 2500 کلو ناقص گوشت تلف کر دیا گیا ہے.
तलहार पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मनशियात फरोशों से बड़ी मकदार में गुटखा और गुटखा बनाने का सामान बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि तलहार में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं तलहार पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मनशियात फरोशों से बड़ी मकदार में गुटखा और गुटखा बनाने का सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि तलहार में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर में सेक्रेटरी महकमा माहौलियात डॉक्टर नईम राउफ की एंटी डेंगू स्क्वाड के हमरा मुख्तलिफ इलाकों की इंस्पेक्शन के दौरान गुलबर्ग में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग से मुख्तलिफ मकामात पर लार्वा बरामद हुआ है। लाहौर में सेक्रेटरी महकमा माहौलियात डॉक्टर नईम राउफ की एंटी डेंगू स्क्वाड के हमरा मुख्तलिफ इलाकों की इंस्पेक्शन के दौरान गुलबर्ग में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग से मुख्तलिफ मकामात पर लार्वा बरामद हुआ है। लाहौर में सेक्रेटरी महकमा माहौलियात डॉक्टर नईम राउफ की एंटी डेंगू स्क्वाड के हमरा मुख्तलिफ इलाकों की इंस्पेक्शन की गई है और दौरान इंस्पेक्शन गुलबर्ग में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग से मुख्तलिफ मकामात पर लार्वा बरामद हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर में सेक्रेटरी महकमा माहौलियात डॉक्टर नईम राउफ की एंटी डेंगू स्क्वाड के हमरा मुख्तलिफ इलाकों की इंस्पेक्शन के दौरान गुलबर्ग में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग से मुख्तलिफ मकामात पर लार्वा बरामद हुआ है। लाहौर में चीफ WTO सेल नाजिया जबीन का मॉडल बाजार टाउनशिप का दौरा। नाजिया जबीन ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों और सार्फिन को फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौका पर नाजिया जबीन ने कहा कि मॉडल बाजार में ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना काम करते देखकर खुशी हुई। सार्फिन को भी बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर में चीफ WTO सेल नाजिया जबीन का मॉडल बाजार टाउनशिप का दौरा। नाजिया जबीन ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों और सार्फिन को फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया है। इस मौका पर नाजिया जबीन ने कहा कि मॉडल बाजार में ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना काम करते देख कर खुशी हुई। सार्फिन को भी बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सजावल के करीबी गांव डतल खान लगारी में तालाब में डूबकर 2 बच्चियां जान की बाजी हार गईं। अहले इलाका के मुताबिक अहले खाना ने दोनों को घर में ना मिलने पर तलाश शुरू की, जिसके बाद बच्चियां तालाब से मिली, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जानबर ना हो सकी। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने जुमा को तमाम कारोबारी मराकज़ बंद करने का लेटर तो जारी किया, लेकिन इंतजामिया इस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद असलम से। राना असलम, इंतजामिया लेटर पर अमल दरामद कराने में क्यों नाकाम है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के मेन शाहराह टी चौक पे, जहाँ पे गुज़श्ता शब डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये ऐलानात किए थे कि तमाम जो जुमे वाली तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। तो इस वक्त जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं, यहाँ पे आके चेक किया, देखा तो तमाम जो दुकानें मेडिकल स्टोर हो या बेकरी हो या और खाने पीने की खुद इशा की जो शॉप है वो तमाम हमें खुली नज़र आई। तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानेंगे कि इसकी क्या वजूहत है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने तो ऐलानात किए कि ये तमाम जुमे वाली दिन जो शॉपें बंद रहेंगी, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताएंगे सर। जी देखिए, सबसे पहले तो गुज़श्ता साल और पिछले दिनों में जो कोरोना की सूरत हाल रही है, तो इस मतलब कारोबारी मराकज़ और शहरी खुद इंतहाई परेशान नजर आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अगर अपने बिहाफ पे अपर गवर्नमेंट के कहने के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया, तो पहले तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो गुरेज है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है तो उन्हें चाहिए था कि कम से कम इसका इतलाक यकीनी बनाते, ताकि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को जो है वो पब्लिक के सामने जतला सकते। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें पहले ये कहा जाता है कि तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी और बाद में उस पर अमल दरामद ना होना इंतजामिया के लिए अपने आप में एक सवालिया निशान है। जी शहरी का ये कहना है कि ये जो पहले ये दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये बंद हो गई हैं तो इसके ऊपर जो अमल दरामद होना चाहिए था। जी मीरपुर की तहसील साकरू की यूनियन काउंसिल धाबेजी में कायम पब्लिक पार्क पर कब्जे के खिलाफ सिविल सोसाइटी और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पार्क पर गैर कानूनी कब्जा छुड़ाया जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद समूह से। शाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसी धाबेजी मेन नेशनल हाईवे के ऊपर,
जहां तहसील एडमिनिस्ट्रेशन मीरपुर साकरों की बेध्यानी की वजह से, गफलत की वजह से, मिली भगत की वजह से जो धाबेजी यूनियन काउंसिल में एक पार्क जो बच्चों की तफरीह के लिए, फैमिली की तफरीह के लिए बनाया गया था, उसके ऊपर लैंड माफिया, बिल्डर माफिया का कब्जा है। इलाका मकीनों ने जो पार्क है उसके ऊपर एहतियाज किया हुआ है। आइए हम इलाके मकीनों से बात करते हैं कि इस हवाले से, इस जो कब्जा हुआ है, इस हवाले से इलाका मकीनों का क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि ये एक ही पार्क है धाबेजी शहर के अंदर, जो कि यूनियन काउंसिल की 4 दीवार के अंदर बना हुआ है। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि यहाँ पर लैंड माफिया कब्जा करके इस पार्क को भी ख़त्म करना चाहती है, जिसके एवज़ वो लाखों की पगड़ी लेके अपने पेट में डालेंगे और हमारे बच्चों के जो है ना खेलने की जगह है जो भी मुयसर नहीं है, गेट अक्सर बंद होता है, तो उसकी वजह से जो है ना हम पुरज़ोर एहतजाज करते हैं। DC ठट्ठा और जो हुकाम है उनसे अपील करते हैं कि इस काम को फौरी तौर पर बंद किया जाए और नोटिस लिया जाए। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी जो एहतियाज कर रहे थे। उनका कहना था कि यूनियन काउंसिल धाबेजी में एक ही पार्क है, वाहिद पार्क है, जिसके ऊपर भी लैंड माफिया, बिल्डर माफिया और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत से कब्जा किया जा रहा है, शॉपिंग सेंटर बनाया जा रहा है। इलाका मकीनों ने DC ठट्ठा और आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि फौरी तौर पर कब्जा बंद। शाहिद समूह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। रत्तो डेरों में खस्ता हाली के शिकार पुल की मरम्मत कर दी गई। रत्तो डेरों से जैकबाबाद और शिकारपुर जाने वाले मेन रोड पर घोटिया पुल नाकिस मटीरियल से तैयार किया गया था, जिसकी अरसा दराज से मरम्मत दरकार थी। कोहिनूर न्यूज़ पर पुल की खस्ता हाली की खबर चलने पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई और पुल को मरम्मत कर दिया गया। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन हुआ है। रत्तो डेरों में खस्ता हाली का शिकार पुल की मरम्मत कर दी गई है। रत्तो डेरों से जैकबाबाद और शिकारपुर जाने वाले मेन रोड पर घोटिया पुल नाकिस मटीरियल से तैयार किया गया था, जिसकी अरसा दराज से मरम्मत दरकार थी। कोहिनूर न्यूज़ पर पुल की खस्ता हाली की खबर चलते पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई और पुल की मरम्मत का काम कर दिया गया। सवात में कमिश्नर मालाकन डिवीज़न शौकत अली यूसुफजई की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें दरिया सवात के अतराफ गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया गया। इजलास में तजावुज़ात की निशानदेही के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। SDO इरिगेशन और TMO बहरीन को तजावुज़ात की निशानदेही का टास्क दे दिया गया। कमेटी ने पहले ही कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात करने पर 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फिरोज वटवा में 7 स्टार प्रेस क्लब की जानिब से फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों को फ्री चेकअप, अद्वियात और ऑपरेशन तक की सहूलियात दी गई। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। फराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा में। फिरोज वटवा में 7 स्टार की जानिब से एक फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया, जिसमें आने वाले मरीजों के लिए अद्वियात, चेकअप और मेडिसिन जो है वो फ्री दी गई। हमारे साथ एक मरीज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस फ्री आई कैम्प के इनेकाद के बारे में क्या कहना है। ये बहुत अच्छा काम है, हम बहुत खुश हैं। हमारे गांव में ये कैंप हुआ है, हम बहुत खुश हैं। जिन्होंने ये करवाया है, अल्लाह ताला उनको बहुत दे, और ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम होगा तो हम भी खुश होंगे। हमें शेखपुरा नहीं जाना पड़ेगा या लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर ही हमें ये अद्वियात और फ्री ऑपरेशन हो जाएंगे, तो हम बहुत खुश हैं। ये करने वालों को अल्लाह बहुत कोशिश रखे और कामयाब करे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम बहुत खुश हैं कि हमें शेखपुरा जाने की ज़रूरत नहीं और हमारा काम यहाँ हो रहा है, फ्री हो रहा है। अब हम जानते हैं यहाँ की इंतज़ामिया से कि उनका इस फ्री आई कैम्प के निकाल के बारे में क्या कहना है और इसके बारे में उनका क्या इज़हार ख्याल है। जी बिल्कुल, हम 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज वटवा के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने ये फ्री आई कैंप लगवाया है। और आवाम जो है महंगाई की वजह से अपनी आंखें नहीं बनवा सकती, उनको ये सहूलत फ्री फराहम की गई है। फ्री चेकअप, फ्री ऑपरेशन, फ्री अद्वियात दे रहे हैं, तो हम 7 स्टार का शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम 7 स्टार का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी जानिब से फ्री कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आने वाले कई। फराज अहमद मुगल आई कैम्प के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। लाहौर डिफेंस ए के इलाका में चोरी की वारदात, चोर शहरी की कीमती गाड़ी और मोबाइल ले उड़े। 24 घंटे की ताखीर के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। इलाके में सेफ सिटी के लगाए दर्जनों कैमरे खराब निकले। फुटेज कोहिनूर न्यूज़ को मौसूल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर डिफेंस ए के इलाके में चोरी की वारदात हुई है। चोर शहरी की कीमती गाड़ी और मोबाइल ले उड़े। 24 घंटे की ताखीर के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। इलाके में सेफ सिटी के लगाए गए दर्जनों कैमरे भी खराब निकले हैं। फुटेज कोहिनूर न्यूज़ को मौसूल हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये डिफेंस ए का इलाका है जहां पर बिजनेसमैन शहरी अपनी नई गाड़ी लेकर जो है वो वॉक करने के लिए जब डिफेंस ए के इलाका में पहुंचता है तो ठीक 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो चोर वहां से गाड़ी ले जाते हैं और गाड़ी के अंदर एक बेहतरीन तकरीबन 4 लाख रुपए मालियत का मोबाइल फोन भी मौजूद था, वो भी जो है वो उसको जो है वो चोरी कर लिया गया। लेकिन जो फुटेज देखी जा रही है जो कि कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल की है उसमें चोर जो है वो गाड़ी भी ले जा रहा है, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक यहाँ पर इससे कबल भी जो है वो तकरीबन 2 से 3 गाड़ियां इसी तरह से चोरी हो चुकी हैं। लेकिन डॉल्फिन पुलिस के एहलकार जो है वो यहाँ इसी पार्क के अंदर जो है वो छांव के अंदर आराम करते हैं और इसके अलावा जो मुतलका पुलिस जो है वो भी यहाँ पर आराम करती है। तो हाल अगर बात की जाए चोरों की तो चोर जो है वो एक महंगी तरीन गाड़ी जो है वो यहाँ से ले उड़े हैं और उसके बाद जो है वो जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो हमने हासिल कर ली है। कोहिनूर न्यूज़ पर देख भी सकते हैं कि चोर जो है वो गाड़ी चोरी कर रहा है। लेकिन लम्हा फिक्री इस बात का है कि जब गाड़ी चोरी हो जाती है और उसके 24 घंटे गुजरने के बाद ये मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि अगर किसी का भी कोई पूरे पाकिस्तान में पूरे पंजाब में जो है वो कोई अफेंस होगा तो फौरी तौर पर जो है उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। आईजी पंजाब के अहकामात को भी जो है वो डिफेंस पुलिस ने, खासकर शुएब सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसको एप्लीकेशन जब दी गई थी उसने जो है वो इंदराज मुकदमा के करने की बजाय जो है वो उनसे पैसों का रिश्वत का मुतालबा शुरू कर दिया और 24 घंटे इसी इंतजार में रहा कि मुझे ये रिश्वत देंगे तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ताहाल एसपी कैंट की हिदायत के मुताबिक ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 381 जो है वो तेबे का, लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज में जो है वो वाज़ेह नजर आ रहा है कि साथ में जो है वो एक फेक नंबर प्लेट वाली गाड़ी आके रुकती है जिसके अंदर चोर मौजूद होते हैं और उस फेक नंबर वाली गाड़ी को भी जो है वो पुलिस की जानिब से अभी तक जो है वो ट्रेस नहीं किया गया। हाल जो मोटरवे पे जो है जो कैमरे लगे हुए हैं वहां पे जो कैमरों में भी चेकिंग की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात लम्हा फिक्रिया ये है कि लाहौर में जो सेफ सिटी के कैमरे काम कर रहे थे उसको तमाम जो है वो खराब हो चुके हैं। जहां पर ये गाड़ी चोरी हो रही थी वहां पर ऊपर भी एक कैमरा लगा था, लेकिन सेफ सिटी की जानिब से साफ जवाब देखा गया कि कैमरा खराब है और इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें जो है वो सेफ सिटी के कैमरे जो है वो शहरियों की मदद करने की बजाय जो है वो खराब नजर आते हैं। हाल अभी तक जो है वो मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है लेकिन अभी गाड़ी बरामद नहीं की गई और ना ही किसी भी चोर को गिरफ्तार किया गया। वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने सीवरेज की तामीर और मुरम्मत के कामों का मुआयना किया। इस मौका पर मुतलका महकमा जात के अफसरान भी मौजूद थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मुझे बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने बहावलपुर अस्पताल बहावलपुर के ज़ेर तमीर आर्थोपेडिक वार्ड का भी अचानक दौरा किया। उन्होंने हिदायत दी कि बहावलपुर अस्पताल के तमाम ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने आर्थोपेडिक वार्ड में ज़ेर इलाज मरीजों की आदत की और उनकी खैरियत दराफ्त की। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने आर्थोपेडिक वार्ड के बाद कैंप इंतजार मरीजों के लकीन से भी दस्याब तिब्बी सहूलियत के बारे में पूछा, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, MS बहावलपुर अस्पताल डॉक्टर औरंगजेब आर्थोपेडिक वार्ड के डॉक्टर भी मौजूद थे। राजा जहांगीर अनवर ने इस्लामी कुनी रोड बहावलपुर के मकाम सीवरेज की तमीर और मुरम्मत के कामों का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर मुतलका महकमा जात के अफसरान मौजूद थे। मुझे बहावलपुर डिवीजन ने हिदायत दी कि इस्लामी कुनी रोड सीवरेज और सड़क की तमीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। इस दौरान मशीनों के जरिए सीवरेज को क्लियर करके सीवरेज सिस्टम को फंक्शन फाल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहावलपुर बेसमेंट कंपनी मरतूब हुकूमत अमली के तहत सफाई सुथराई को बरकरार को यकीनी बनाए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने पुल, दीवान और कमर्शियल एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ मकामों से बंद वाटर। तहसील इंतजामिया और महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत और लापरवाही से खैरपुर टामे वाली और गिरदोनवा में जानवरों में लंपी स्किन वायरस फैल गया। लंपी वायरस से दर्जनों जानवर हलाक हो गए। वायरस का इंसानों में भी फैलने का खदशा है। मवेशी पाल हजरात भी इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर आ गए। कहते हैं महकमा वेटरनरी के डॉक्टर वैक्सीन की मद में 1500 रुपये फी जानवर वसूल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका।
پنڈی گیٹ میں انسپیکٹر جنرل خالد محمود کے احکامات پر مسافروں کا سفر مزید محفوظ بنانے کے لیے زونل کمانڈر موٹر ویز نے بس مالکان اور مسافر بردار گاڑیوں کے لیے ریکارڈ تکمیل کا آغاز کروا دیا۔ پہلے مرحلے میں سی پیک کی مسافر بس کمپنیوں کے مالکان اور نمائندگان سے رابطہ اور ریکارڈ کی تکمیل کا آغاز کیا گیا۔ بس مالکان کو سی پیک سفری سہولیات سے لے کر موسمی تغیر، ناگہانی واقعہ، غیر معمولی رکاوٹ یا دیگر سہولیات محکمہ بارے معلومات بھی فراہم کی جائیں گی۔ سیالکوٹ میں ممکنہ سیلاب کی تیاریوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام فلڈ سیکٹرز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی قیادت میں سینٹرل ریسکیو اسٹیشن پر ممکنہ سیلاب کی تیاریوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام کنٹرول روم انچارجز نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے تمام فلڈ سیکٹرز جن میں سیالکوٹ شہر، چپراڑ، سید پور، ہیڈ برالا، شہباز پور، تحصیل سمبڑیال، پسرور اور ڈسکا کے سیکٹرز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ چنیوٹ میں متعدد پہاڑی علاقوں کے مکین 1 ماہ سے پینے کا صاف پانی نہ ملنے پر میونسپل کارپوریشن اور متعلقہ افسران کے خلاف سراپا احتجاج۔ ڈی سی دفتر کے باہر روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے میونسپل کارپوریشن افسران کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ معاملے کا نوٹس لیا جائے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن سلوت سعید کا اوکاڑا کا اچانک دورہ، ٹی ایچ کیو اسپتال، اراضی ریکارڈ سینٹر اور بازاروں کو چیک کیا۔ عوامی شکایت پر ٹی ایچ کیو اسپتال عملہ کی انکوائری اسسٹنٹ کمشنر کے سپرد کر دی۔ کمشنر ساہیوال نے ٹی ایچ کیو اسپتال میں ناقص ایڈمنسٹریشن اور عوامی شکایت پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور مریضوں کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر ملک محمد افضل کو انکوائری مکمل کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں پانی کی شدید قلت کے خلاف کاشتکار سڑکوں پر نکل آئے۔ نواحی گاؤں گوزو سے سٹی پریس کلب تک ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کسانوں نے اریگیشن عملے کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نہروں میں پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ نہری پانی فراہم نہ کیا گیا تو انڈس ہائی وے بلاک پر دھرنا دیں گے۔ مرید کے کچا کوٹھا کے قریب ٹائر فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ، آگ لگنے سے 8 مزدور جھلس گئے۔ 4 مزدوروں کو تشویشناک حالت میں ریسکیو 122 اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر متاثرین کو ابتدائی طبی امداد دے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ منڈی بہاؤدین میں یوریا کھاد کے حصول میں مشکلات کا سامنا، کاشتکار سراپا احتجاج بن گئے۔ کاشتکاروں کا کنگ چوک پر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا۔ مین منڈی پھالیا روڈ ٹریفک کے لیے بند، سرگودا گجرات سمیت موٹر ویز سے ملانے والی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کھاد کی عدم دستیابی پر کسان بورڈ کے قائدین نے ڈی سی منڈی بہاؤدین سے ملاقات کر کے کسانوں کے مسائل حل کرنے پر توجہ دلائی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہ اٹھانے پر احتجاج کی کال دی۔ بلیک مارکیٹ میں 3000 کی بوری خریدنا پڑتی ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے نوٹس لینے اور کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہکوٹ میں پولیس کی کارروائی، دوران ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار کو قتل کرنے والا خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے دوران واردات استعمال ہونے والا اسلحہ اور کار برآمد۔ ڈی پی او منصور امان کی ہدایت پر ایس پی انویسٹیگیشن میاں محمد اکمل کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملزمان نے شاہکوٹ میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر عبدالجبار کو قتل کیا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے مزید کہا کہ ملزمان نے سٹی شاہکوٹ اور صدر شاہکوٹ کے علاقے میں ڈکیتی کی 3 وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ملزمان ضلع ننکانہ، حافظ آباد اور سرگودا میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر اینٹی ڈینگی اقدامات کے حوالے سے نجی اسکول میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر میلسی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بعد ازاں ڈینگی وائرس کے حوالے سے آگاہی واک ریلی بھی نکالی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی نے ڈینگی کے حوالے سے تمام ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں، مچھر بگاؤ اقدامات کیے جائیں۔ اسکول ڈینگی وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اساتذہ کا کردار باعث فخر ہے۔ محکمہ بہبود آبادی ضلع بہاولپور کی ڈسٹرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اقبال مقوال نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں محکمہ کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ رانا محمد عمران کا کہنا تھا کہ محکمہ نے بہاولپور کے مختلف دیہی علاقوں میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر اعجاز رسول، رانا محمد عمران، ڈاکٹر حفصہ رحمان سمیت متعلقہ افراد نے شرکت کی۔ کوہینور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز۔